Hello students. Now lesson 2, administrative structure, policies and impact of British rule. In the first lesson we have learned about the invasion of British Empire, and now in this chapter, after the established here Britishers, their structure of administration, policies and impact of British rule. ब्रिटिश एम्पायर हमारे यहाँ स्थापित हो चुका था और इसके बाद इसके बाद हम इस चैप्टर में देखेंगे कि उनका जो प्रशासन था वो किस तरह से चला रहे थे, वो उनकी नीतियां क्या थी और उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहे थे, क्या प्रभाव पड़ रहे थे. सो लेट अस लर्न इन दिस चैप्टर व्हाट वाज मीन्ड बाय ड्यूल रूल इन बंगाल, व्हाट वर द मेन प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट, व्हाट वाज द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, economic policies of British rule and their demerits, what were the objectives of reforms made by British rule. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से दोहरा शासन प्रबंध उन्होंने लगाया, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट इंडिया एक्ट में क्या था, उसके क्या क्या मेन प्रोविजंस थे, और फिर उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जिसे कहते थे वो क्या था, ब्रिटिश शासन की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी और उसका हमारे ऊपर क्या डिमेरिट्स पड़ रहा था, और ब्रिटिश शासन ने जो हमारे यहाँ कुछ सुधार किए थे उनका क्या कारण था, किस वजह से सुधार किए थे, उनका क्या उद्देश्य था. नाउ लेट अस स्टार्ट. ईस्ट इंडिया कंपनी showed the exit door to its rival French company by defeating them in Carnatic wars. The company established supremacy over Bengal, Bihar, Odisha, Awadh and Mughal emperor after the battle of Plassey and Allahabad. Now, from traders, they became administrators. Now, from traders, they became administrators. The ambition of the company kept on soaring that brought South India under control after Mysore war. On one hand, the other hand by defeating Marathas. They established their power in central India. Those states which were not under its control were brought under their reign as the company signed alliance with the former. By 1857, the whole of India, directly or indirectly, was under the control of British rule. Thus, taking advantages of unstable political condition of India, a trading company succeeded in establishing its rule. But the basic nature of its employees was that of businessmen. So they lacked the acumen required to run the administration of a country. The company employees were greedy, dishonest, lacked vision and proper education. Their aim was to hoard wealth and they were ready to go any extent to fulfill this purpose. It was essential for the company to train the clerks, brokers and businessmen to become administrators. To achieve this purpose, rules were formed and implemented frequently. Efforts were made to control the unruly behavior of the company officials. They were taught to be administrators. A few trained officials and staff were sent from England. Despite this, they remained the same and were not ready to give up their trading tilts, and this proved fatal for Indian people. The company staff robbed the Indian traders, farmers, artisans and kings. So students, कर्नाटक के युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने फ्रांसीसी कंपनी को बाहर कर दिया था हमारे देश से, और इसके बाद पूरे लगभग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और पूरे जो मुगल सम्राट थे उन पर अपना कंट्रोल कर लिया था. इलाहाबाद की संधि के बाद उनको उड़ीसा, बंगाल, बिहार सब पर अधिकार मिल गए थे और इस तरह से वो अब एक एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे.
कंपनी की जो महत्वाकांक्षा थी बहुत ज्यादा होती गई और उन्होंने धीरे धीरे करके संधियां की कई जगह पर, और इसके बाद 1857 तक लगभग चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली उन्होंने लगभग सारे देश पर राज करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जो लाभ कमाने के लिए इन्होंने सत्ता प्राप्त की थी, और उनका बस वही एक था कि वो क्या करते थे, सिर्फ व्यापार की दृष्टि से वो यहाँ पर रहना चाहते थे और अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज है उनको वो अभी शो नहीं कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जो कुछ कंपनी में कुछ ऐसे कर्मचारी थे जो कि ग्रीडी थे, डिसऑनेस्ट थे, बेईमान और मतलब अर्ध शिक्षित भी थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ एक ही काम करना चाहते थे कि वो धन कमाना चाहते थे, और इसके लिए वो किसी भी सीमा तक चले जाते थे। उन्हें अपने कैरेक्टर के बारे में कोई उनको वो नहीं था, वो दूरदर्शी भी नहीं थे। लेकिन उन्हें ट्रेंड करके ये दूरदर्शी उन्हें बनाना आवश्यक हो गया। तो कंपनी ने यह डिसाइड किया कि उनको समय समय पर कुछ नियम बनाए ताकि वो उन्हें ट्रेंड किया जा सके, और वो ये छोटे छोटे से लाभों को ना देखकर पूरे भारत पर जो उनका सपना था कि हम राज करें, वो सपने को पूरा किया जा सके। तो उन्होंने धीरे धीरे कुछ पढ़े, जो इंग्लैंड था उसने कुछ पढ़े लिखे ऑफिसर्स यहाँ पर भेजे, जो कि यहाँ पर पूरा जो हमारा देश है उस पर पूरा कंट्रोल कर सके। इस तरह से वो ट्रेंड किए गए थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पहले से जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना लाभ छोड़ना नहीं चाहते, तो इसके लिए वो कुछ भी लूट तक करते थे, और इसके कारण हमारे जो ट्रेडर्स थे, जो हमारे फार्मर्स थे, इन सबको बहुत ज्यादा, आर्टिशंस थे, राजा थे, उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था, और हमारा जो देश था धीरे धीरे अंग्रेजों की हाथ में अंडर कंट्रोल हो गया।